Good morning, students. Once again, welcome back in computer class. As you all know very much, myself Ravi Kumar from Subrat Singh Children Academy, Argopur Clan, Jaunpur. Dear students, in today's class, we will take the new chapter 6, formatting a document. So, who will tell me कि what is formatting? My question is, what is formatting? Who will give me the best answer? Anybody else? Okay. I will tell you the formatting definition. Actually, the word formatting means changing the appearance of a document, to make it attractive. Formatting means changing the answer. You can write formatting means changing the appearance of the document to make it attractive. Am I right? Formatting means changing the appearance of the document to make it attractive. आप अपने डॉक्यूमेंट को कितने अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उसी को ही फॉर्मेटिंग कहते हैं. There are 9 steps, there are 9 points that you can include in this topic as formatting. Those 9 points are: number first, changing font and its size. Number 2, setting margins and tabs. Third, changing text case. Number 4, highlighting certain words. Number 5, aligning text on a page. 6, applying border and shading. 7, adjusting line spacing. 8 point,
creating bulleted numbered list. 9. Changing text styles. 10. And color. So dear students, these 9 points are going to include in your syllabus. ये 9 points आपके syllabus में include हो रहे हैं. Number first, changing font and its size. Second, setting margins and tabs. Third, changing text case. Fourth, highlighting certain words. Fifth, aligning text on a page. 6, applying border and shading. 7, adjusting line spacing. And number 8, creating bulleted number list. And number 9, changing text styles and color. So these 9 points you have to be in remember. We will discuss these 9 points in some detail according to the class 4th. Changing font and its size. जो लिखने की हमारी जो ये राइटिंग है, इस राइटिंग को ही कहा जाता है फॉन्ट. अब फॉन्ट का स्टाइल भी होता है, फॉन्ट का साइज भी होता है. फॉन्ट के स्टाइल के लिए आपको होम टैब में ऊपर आपको दिखाई देगा उसके स्टाइल्स के लिए. और फॉन्ट साइज यू नो वेरी वेल कि उसका बड़ा छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं. जो भी लिखा गया है, हमने जो भी लिखा है ये फॉर्मेटिंग, इसको हम चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, एंड वी कैन ऑल्सो इसको बड़ा भी कर सकते हैं. तो ये कहा गया है चेंजिंग फॉन्ट एंड इट्स साइज. आप उसके फॉन्ट को बदलिए और उसके आकार को भी बड़ा छोटा करिए. तो ये फैसिलिटी है. आप अपने पेज में, जो ये पेज है, इस पेज में आप फॉन्ट एंड इट्स साइज को यूज कर सकते हैं. सेकेंड, सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स. सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स. मार्जिन्स एंड टैब्स यहाँ पेज में ऊपर दिखाई देगा. आप चाहें तो यहाँ से उसको सेटिंग कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू यू कैन चेंज द मार्जिन्स एंड यू ऑल्सो कैन चेंज द टैब्स. टैब्स आर 5 टाइप्स: लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड अलाइनिंग. तो 5 टाइप्स ऑफ टैब्स. थर्ड वन इज चेंजिंग टेक्स्ट केस. यह टेक्स्ट केस का मतलब होता है कि जैसे आप इंग्लिश, इन द इंग्लिश लैंग्वेज यू आर टेलिंग अबाउट कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. सेम वे in our computer language we can say about the text case are 2 types: lower case and upper case. upper case का मतलब होता है capital alphabet and lower case means small alphabet. Highlighting certain words, whatever you are typing in the computer document में आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसको आप हाईलाइटेड भी कर सकते हैं. अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन ए पेज. सो इन द 5th पॉइंट, अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन ए पेज मीन्स अलाइनिंग टेक्स्ट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट: लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम लिखें या तो वो पूरा लेफ्ट में ही रहे, या तो वो पूरी चीज राइट में जाए, या पूरा चीज सेंटर में रहे, या वो जस्टिफाई के रूप में रहे. इसी को अलाइनमेंट कहते हैं. नेक्स्ट 6th पॉइंट, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग. आप अपने पेज में
बॉर्डर एंड शेडिंग, इस तरीके से बॉर्डर लगा फिल कर सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है अकॉर्डिंग, ये पहली लाइन फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज अवर सेकेंड लाइन, दिस वन इज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, बट देयर आर सम गैप्स, देयर आर सम गैप्स बिटवीन each line. So with the help of this 7th point, adjusting line spacing, you can, by clicking on the line spacing, you can just save these spaces. You can, with the help of this line spacing option, you can save these spaces between the पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस। जो भी आपको ये लाइन दिख रही है बीच बीच में, जो इतना इतना जो ये जो दूरी बनी हुई है, इनको आप थोड़ा सा पास कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा जो जगह बचा हुआ है, इनको पास करेंगे तो आपको यहाँ पर इकट्ठा इतना जगह स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग। ओके, 8th पॉइंट, क्रिएटिंग बुलेटेड नंबर्ड लिस्ट। ये बुलेटेड नंबर लिस्ट का मतलब है, सपोज अगर हमको बाजार जाना है फ्रूट लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेंगे और पेपर लेने के बाद हम उसमें पॉइंट्स लिखेंगे। एप्पल, बनाना, कोकोनट, ऑरेंज, ग्रेप्स, जो भी फ्रूट्स के नेम हम लिख रहे हैं, सामने एक डॉट लग रहा है, बुलेट लग रहा है, इसी को कहते हैं बुलेटेड लिस्ट। नंबर लिस्ट का मतलब होता है आप इसी बुलेट की जगह पर आप नंबर लिख देंगे। दिस वन इज कॉल्ड नंबर लिस्ट। बुलेटेड में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुलेटेड। दिस वन इज आल्सो बुलेट, दिस वन इज कॉल्ड बुलेट, ये भी बुलेट में आएगा। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सिंबल्स इन दिस बुलेटेड लिस्ट। 9th, चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल्स एंड कलर। अब आप जो भी चीजें लिख रहे हैं उसके स्टाइल्स और कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। सो इन योर सिलेबस, formatting means changing the appearance of a document to make it attractive. We can create and design appealing documents by changing fonts and size, setting margins and tabs, changing text case, highlighting certain words, aligning text case on a page, applying border and shading, adjusting line spacing, creating bulleted number list, changing text styles and colors. Formatting effects can be applied using the Home tab, which contains font formatting commands, font group, paragraph options, paragraph group, text style commands, styles group, copying and moving commands, clipboard group, finding, replacing, selecting commands, editing group. So these are these extra activities to make our documents as very creative way. First topic, changing the font type. The character means this one. The characters of a specific size and design used for typing the text are called font. The characters of a specific size and design used for typing the text are called font. जो भी हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपने उसके साइज के अनुसार, उसी को हम फॉन्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शन। बात तो सही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत तरह के फॉन्ट ऑप्शंस अवेलेबल करा रहा है, और उसमें से व्हेन यू ओपन वर्ड, जब आप वर्ड को ओपन करेंगे, द टेक्स्ट अपीयर्स इन डिफॉल्ट फॉन्ट। टेक्स्ट
हमेशा डिफॉल्ट फॉन्ट में आपको मिलेगा। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? कैलिबरी बॉडी विथ 11 पॉइंट साइज। कैलिबरी बॉडी ये आपकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी बॉडी and font size default 11. To change the font type, follow the given steps. Number first, select the text. font के टाइप को चेंज करना है तो select the text, पहले इसको select करेंगे, फिर go to the home tab पे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है, click on the drop down arrow next to the font box in the font group, a list of font appears. जब आप इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर ऑफ फॉन्ट लिस्ट विल अपीयर। चॉइस अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने मन के अनुसार उस लिस्ट में से एक फॉन्ट टाइप को चॉइस करिए। सेम वे, ठीक उसी प्रकार से फिर फॉन्ट लिस्ट नंबर पे जाएंगे, फॉन्ट साइज पर, वहां भी क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ फॉन्ट साइज, बहुत तरह के साइजेस मिलेंगे आपको। अकॉर्डिंग टू यू आप उसमें से भी चॉइस कर सकते हैं। चॉइस करते ही आपका ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। चूज द डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंज। अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज। जी प्यारे बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपने जो भी कुछ वॉट एवर यू आर राइटिंग इन द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, यू कैन चेंज द फॉन्ट टाइप एंड इट्स साइज अकॉर्डिंग टू यू। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके टाइप और उसके आकार को बदल सकते हैं। यू विल गेट द options. Okay, point to be noted. Microsoft has set the default font to Calibri body with 11 font size in Word 2007 and Word 2010, whereas in previous versions of Word it was Times New Roman. Points to be remember in mind. ध्यान देने वाली बात है कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो टाइप है वो है आपकी कैलिबरी बॉडी और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 11। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। Applying bold, italic and underline। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए बोल्ड, इटैलिक, इसके लिए शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक के लिए है कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन के लिए है कंट्रोल प्लस यू। किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए ये यूज करिए। इटैलिक के लिए थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा आई। अंडरलाइन के लिए यू, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। Very important, this also, the font style options such as bold, italic and underline
are used to emphasize the text and catch the reader's attention. Bold, it makes the selected word darker than the rest of the text. Italic, this effect emphasizes the text by slanting it to the right. Underline, it emphasizes the text by placing a line under it. We can underline a word or sentence. To apply any font style effects, select the text. Click on the button bold or italic or underline in the font group of the home tab. और ये तीनों ही ऑप्शंस आपको होम टैब में मिलेंगे. होम टैब. Microsoft Word provides a variety of formatting options which can be selected from the font dialog box on the home tab. Simply click on the font dialog box and box launcher in the font group. So dear students, you can just take the practical about formatting a document. It's a very interesting chapter in your syllabus and it can you do very easily. यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना है. इट मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है. उसके लिए आप अपने फॉन्ट पेपर डॉक्यूमेंट में बोल्ड ले सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर. हमने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर, लेकिन ये शब्द कंप्यूटर कैपिटल लेटर में है. किस चीज में है? कैपिटल लेटर में. अब इस कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में करना था, लेकिन ये तो गलत हो गया ना. क्या करेंगे अब इसके लिए? इसके लिए करेंगे कि कंप्यूटर में हम इसको इरेज नहीं करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे. और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे. जब पहली बार हम प्रेस करेंगे एक उंगली से शिफ्ट, दूसरे से F3, तो ये आपका स्मॉल में हो जाएगा. फिर दोबारा एक बार फिर शिफ्ट और F3 दबाएंगे, तो पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल. तो ये शॉर्टकट की आपके यहां पे दिया है चेंजिंग टेक्स्ट केस, उसमें वर्क करेगा ये. इसको बी रिमेंबर दिस, यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर बेटर क्रिएटिव वे. तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी टू क्लियर. ध्यान देने की चीज है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट इन दिस चैप्टर 6 वी हैव टू लर्न मोर शॉर्टकट कीज. बहुत सारे शॉर्टकट कीज हमको इसमें याद करना होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया आज है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. हमको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है. ये एक मैंने एडवांस बताया आपको कि अगर टेक्स्ट केस, हाँ इसको बोलते हैं टेक्स्ट केस. अगर हमारा टेक्स्ट केस अपर केस लोअर केस, जैसे अपर केस में लिखा गया है ये, अगर हमको इसको लोअर केस में करना है तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देंगे. आप फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नो नीड. आप इसको जैसे लिख दिया वैसे लिख दिया, कोई बात नहीं. बस इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की यूज करें, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा.
पहली बार जब इसको दबाएंगे शिफ्ट प्लस F3, फर्स्ट टाइम व्हेन यू प्रेस द शिफ्ट F3 तो आपको इसमें कुछ स्मॉल दिखाई देगा। सेकेंड टाइम फिर प्रेस करिए, फर्स्ट कैपिटल, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर स्मॉल। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ओके, 1 मिनट, 1 2 3 and this one is 4. This one is used for text case. For a new document के लिए होगा आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है CTRL प्लस N। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट लेना होगा तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस N यूज करेंगे। और अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस S, सेव एज, कंट्रोल प्लस F12, ओपन, CTRL प्लस O. These are the shortcut keys. When you are going to work on a computer, these all shortcuts will help you. ये आपको एक स्मार्ट बनाएगा। अगर एक स्मार्ट यूजर बनना चाहते हैं तो आपको इन शॉर्टकट कीज का यूज करना होगा, तभी आप कंप्यूटर में स्मार्ट बन सकते हैं। नहीं तो कीबोर्ड से और माउस की मदद से तो कंप्यूटर सब कुछ चलाने आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बनने के लिए यू हैव टू यूज मोर एंड मोर कीवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स। use the lots of shortcut keys for each and every. न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस N, सेव कंट्रोल प्लस S, सेव एज कंट्रोल F12, ओपन कंट्रोल O। कोई पुरानी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ये प्रेस करेंगे कंट्रोल और O। CTRL का मतलब है कंट्रोल, पूरा नाम इसका कंट्रोल है, तो इसको याद कर लीजिए। स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एज चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। Already I have told you there are 4 types of alignment: left alignment, right alignment, justify alignment and center alignment। सभी अलाइनमेंट का अलग अलग फंक्शन है। लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट को चला जाएगा, राइट को जस्टिफाई सेंटर में, सेंटर वाला सेंटर में। तो इन योर बुक पेज नंबर 52 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। यू ऑल्सो नो व्हाट इज अलाइनमेंट। Alignment refers to the positioning of the text on the page. Alignment refers to the positioning of the text. लिखी हुई चीज को पेज में ये जगह स्थान बताएगा, उसको ही कहते हैं अलाइनमेंट यानी दिशा। It is always better to set the alignment before typing. It is always better to set the alignment बिफोर टाइपिंग। टाइपिंग करने से पहले ही आपको यह अलाइनमेंट कर लेना होगा, सुनिश्चित कर लेना होगा कि हम जो भी चीज़ लिखेंगे
ये लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, जस्टिफाई होगा. We can also select an entire document and then change the alignment of text. We can also select an entire document. पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना होगा. एंड देन चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. उसके बाद ही आप अलाइनमेंट का टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग टेक्स्ट कलर. नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग टेक्स्ट कलर. आप जो भी टेक्स्ट व्हाटएवर जो भी टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं. होम टैब में जाके फॉन्ट कलर वहां पे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग टेक्स्ट केस. चेंजिंग टेक्स्ट केस. चेंजिंग टेक्स्ट केस में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू इन द लास्ट क्लास. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केस इन कंप्यूटर, अपर केस एंड लोअर केस. फॉर अपर केस वी कॉल्ड एज कैपिटल लेटर एंड फॉर लोअर केस वी कॉल्ड एज स्मॉल लेटर. तो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर जब अगर केस को चेंज करना होगा तो हम इसको चेंज करेंगे. And how can we change? You also know about how to change. What is the shortcut key to change the font color? Changing text color. Sorry, text case. You know about there are 2 types of text case, upper case, lower case. Upper case means capital letter. A lower case means small letter. अब suppose we have written as the word computer, लेकिन ये कंप्यूटर हमारा स्मॉल लेटर में है. हम यहाँ पे लिख देते हैं. अब इस कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना होगा. तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A से. सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे. सेकंड में हम शिफ्ट और F3 से इसको चेंज करेंगे. वी विल चेंज द केस. जब पहली बार हम इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे. सेकेंड टाइम इसको प्रेस करेंगे तो पूरा ही स्मॉल हो जाएगा. चॉइस अकॉर्डिंग टू योर एज पर नीडेड. दिस इज कॉल्ड चेंजिंग केस. चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग में भी यही सेम चीज है. जैसे यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर भी डिस्टेंस. तो ये जो खाली जगह है, स्थान है, ब्लैंक स्पेसेस, इसको कवर करने के लिए ही ऑप्शन दिया गया है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. प्रैक्टिकल रूम में आपको दिखाएंगे कैसे चेंजिंग लाइन स्पेसिंग होता है. इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा होम टैब में चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, और इजीली आप इसका स्पेस रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर लिस्ट. क्रिएटिंग बुलेटेड नंबर लिस्ट. वी कैन फॉर्मेट इन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग बुलेट्स एंड नंबर्स. ए बुलेट इज ए स्मॉल ग्राफिक सिंबल दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट. टू अप्लाई बुलेट्स टू द टेक्स्ट, follow the steps.
गो टू द होम टैब। होम टैब में जाएंगे, आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग्स का पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ से चॉइस करेंगे और जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर दिखाई देंगी। जरूरी नहीं है कि हम फ्रूट नेम ही लिखें, आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट। नंबर लिस्ट के लिए हम जस्ट यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग टॉपिक। फॉर दिस टॉपिक आप सबसे पहले पेज लेआउट टैब में जाएं और पेज लेआउट टैब में जाकर पेज बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो पेज आप लेंगे सपोज हमने पेज लिया, इस पेज में आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले होम टैब, सॉरी नॉट होम टैब, गो टू द पेज लेआउट टैब और यहाँ से आप जा करके पेज बॉर्डर एंड शेडिंग चॉइस करेंगे। तो ये आपका बॉर्डर हो गया, जो चीज़ हम लिखेंगे इसमें उसमें आपकी शेडिंग दिखाई देगी, इसको कहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। लास्ट टॉपिक है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मीन्स और डिफॉल्टेबल कुछ इमेजेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिया गया है। आपको उस सारी क्लिप आर्ट लेने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ क्लिप आर्ट ब्राउज करेंगे और वो पिक्चर्स आप अपने इमेज डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिप आर्ट इज ए गैलरी। क्लिप आर्ट इज ए गैलरी ऑफ pre-designed pictures that can be inserted directly into the document। मैंने कहा आपसे कि क्लिप आर्ट यानी कुछ डिफॉल्टेबल इमेजेस या पिक्चर्स जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही दिया गया है। अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार डॉक्यूमेंट में लगाना होगा किसी भी इमेज को, तो आप उसको उसमें क्लिप आर्ट में जाके सर्च कर लीजिए और उसको लेकर के आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। द क्लिप आर्ट टास्क pane appears to the right of the document. Type the desired keyword in the search for the text box that is related to the image you want to insert. For example, computer, and click on the go button. It will display all the clip art images related to the computer. View the various clip art images using the vertical scroll bar and click on the desired clip art image to insert in the document. After inserting the image, close the clip art task pane by clicking on the close button too. You can also click on the drop down arrow next to the image in the clip art pane to view more options. According to you, आप insert में clip art में जाके आपको जो भी images लेना हो आप उसको लेके insert करा सकते हैं। There are lots of images into the clip art